Now guys, after after the formula of NPR, we proceed with the next topic of permutation, which is called restricted permutation, right? Restricted permutation. Restricted permutation means to find the permutation or arrangement when some restriction is given to you. But before proceeding for this, uh, you should remember the formula of NPR as I had mentioned earlier, taught in the class. NPR is what? As we studied, n minus 1, n minus 2 till n minus r plus 1. How many factors are there? So here we are having r factors. Remember. So the result NPR starts with the superscript यानी कि अपर सफिक्स और एक एक करके कम हो रहा है और कितने फैक्टर्स तक हम लोग जाएंगे तो आर फैक्टर्स तक, राइट? तो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ NPR. इफ दिस इज बीइंग पुट in factorial form, we get NPR equals to factorial n by factorial n minus r, and where r lies from 0 to n, right? Now you should remember few of the values. Factorial 0 as I taught is 1. NP0 अगर निकालोगे फॉर्मूला से भी तो योर आंसर विल बी 1, बिकॉज फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल एन आ जाएगा तो 1 हो जाएगा. NP1 ये याद रखना, ये सब शॉर्टकट में डायरेक्टली यूज कर सकते हो. NP1 इज n, NP1 इज n, NP2 n into n minus 1, NP3 n into n minus 1 into n minus 2. You might understand very well that there will be as many factors as the lowest suffix, right? And the product starts with the upper suffix in descending order, and the number of terms will be equals to what is there in the lower suffix, right? So on. And when the upper and the lower suffix is same, answer is factorial n, right? These much values one should remember, right? Clear? You should note this. Now guys, now when we arrange things now we'll be using this formula NPR, right? Now suppose the question is, in how many ways can 10 different things be arranged taking 5 at a time, right? The answer is, straight away we can say the answer will be 10p5, right? It is same as what we were doing in fundamental principle of counting, right? Actually this formula which we studied is derived from fundamental principle of counting only. 5 places we have 10 things. First place can be filled in 10 ways, 9 ways, 8 ways, 7 ways, 6 ways. अब इसको break करोगे तो you will get the same result. So this is equals to 10p5, right? तो both of them is same. इसमें लिखना पड़ता है, यहाँ आप आंसर straight away लिख रहे हो, इसलिए this is the benefit of the formula, right? Okay. So whenever the question is like that, in how many ways can we arrange so many things, different things, taking this much at a time, तो आंसर विल बी 10p5. ठीक है? अगर मैं यहाँ 10 की जगह n कर दूँ और यहाँ पे r कर दूँ तो आंसर विल बी what? NPR. Now this is without restriction, right? इसमें कोई restriction है in this question? No restriction. We have just to arrange n different things taking r at a time. तो आंसर will be NPR. And remember, this r denotes number of places to be filled with n different things, right? Now if the question is now
इन हाउ मेनी वेज कैन n डिफरेंट थिंग्स बी अरेंज टेकिंग ऑल एट अ टाइम, टेकिंग all at a time, all means n, taking n at a time, n matlab all. So in this case the answer will be what, npn, and we know if we use the formula npn is factorial n. So whenever the question is like this, arrange 10 different things taking all at a time, the answer will be 10p10, या straight away you can say factorial 10. तो आंसर फैक्टोरियल n कब होता है, व्हेन वी अरेंज गिवन डिफरेंट थिंग्स टेकिंग ऑल एट अ टाइम, याद रखना। तो अगर मैं बोलता हूँ 10 बच्चे हैं उनको लाइन में अरेंज करो, इन हाउ मेनी वेज कैन यू अरेंज 10 people इन अ लाइन, द आंसर विल बी 10p10, दैट इज फैक्टोरियल 10 स्ट्रेट अवे। तो दिस इज विदाउट रिस्ट्रिक्शन, अभी तक रिस्ट्रिक्शन नहीं आया, लेकिन इसके बाद हम लोग रिस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन पढ़ने जा रहे हैं, राइट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एकदम क्लियर। तो इन हाउ मेनी वेज कैन एन डिफरेंट थिंग्स बी अरेंज टेकिंग ऑल एट अ टाइम जब भी हो तो फैक्टोरियल है आंसर। और कितना लेना है, टेकिंग हाउ मेनी एट अ टाइम, अगर ये दिया हुआ भी नहीं है तो वी अज्यूम दैट इट इज टू बी टेकन ऑल एट अ टाइम, याद रखो, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ रिस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन, राइट। लेकिन एक बात और, ये जो फॉर्मूला हम लोग NPR का यूज करते हैं, राइट, इसमें याद करो जब हम लोग NPR लिखते हैं, व्हेन वी राइट NPR, दिस डिनोट्स व्हाट, अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, माइंड इट, टेकिंग r एट अ टाइम, यही ना मतलब है इसका। अभी तक हम लोगों ने जब भी चीजों को अरेंज किया, we were taking all the terms to be different, distinct, right? अभी तक हम लोगों ने ये फॉर्मूला जब लिखा तो ये फॉर्मूला इज एप्लीकेबल, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द n थिंग्स आर डिफरेंट, और ये बता रहा है कितना एट अ टाइम लेकर अरेंज करना है, क्लियर। नाउ व्हाट विल हैपन इफ द थिंग्स आर नॉट ऑल डिफरेंट, ठीक है। तो पहला रिस्ट्रिक्शन, फर्स्ट टाइप, when things are not all different, when things are not all different, then how do we arrange it, right? तो रिजल्ट मैं दे रहा हूं, when things are not all different। अब पहले एक्सप्लेन करता हूं कि सपोज करो कि तुम्हारे पास वी हैव 6 डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, 6 डिफरेंट थिंग्स था। अगर मैं बोलूंगा अरेंज दीज 6 डिफरेंट थिंग्स टेकिंग ऑल एट अ टाइम, इसको अरेंज करो टेकिंग ऑल एट अ टाइम, तो आंसर क्या बोलोगे, फैक्टोरियल 6, 6p6, यानी कि फैक्टोरियल 6 आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर ये चीज़ें सब डिफरेंट ना हो, अब मैं फिर से आई एम टेकिंग 6 थिंग्स बट नॉट ऑल डिस्टिंक्ट, अब मैंने 2A लिया, 3B लिया और एक C ले लिया। नाउ ऑल्सो देयर आर 6 थिंग्स, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स 6, लेकिन इज ऑल द 6 थिंग्स डिफरेंट, नो, इसमें सब डिफरेंट नहीं है। इसमें A रिपीट हो रहा है कितनी बार, 2 टाइम्स, B रिपीट हो रहा है कितनी बार, 3 टाइम्स। अब कोई बोले कि इसको अरेंज करो, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, राइट, इज हाउ मच, फैक्टोरियल 6, टोटल थिंग्स जितने हैं उसका फैक्टोरियल लिख दोगे, बाई जितनी चीज़ें जितनी बार रिपीट हो रही हैं उसके फैक्टोरियल से डिवाइड। A रिपीट हो रहा है 2 बार तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड, B रिपीट हो रहा है 3 बार, फैक्टोरियल 3 से डिवाइड। तो कंक्लूजन क्या निकला कि जब भी थिंग्स दिया हो और बोलेगा उनको अरेंज करो टेकिंग ऑल एट अ टाइम, तो आपका आंसर क्या होगा,
अगर ये डिफरेंट है तो आंसर फैक्टोरियल ऑफ जितनी चीज़ें हैं, राइट। लेकिन अगर इनमें से सब चीज़ें डिफरेंट नहीं हैं, कुछ सिमिलर हैं, जैसे a इज़ रिपीटेड 2 टाइम्स, b इज़ रिपीटेड 3 टाइम्स, नाउ इफ़ वी हैव टू अरेंज दीज 6 थिंग्स, तो आंसर विल बी डिस्टिंक्ट में आंसर क्या आता, फैक्टोरियल 6 आता, तो वो तो रहेगा ही, बट डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल ऑफ number of repetitions of things, different things, right? फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 आंसर हो गया। क्यों हुआ ये, क्यों मैंने डिवाइड किया, आई विल एक्सप्लेन, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द एप्लीकेशन। तो अब मैं अगर आपको बोलूं, ध्यान से सुनना, सपोज एक वर्ड इक्वेशन है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बताइए कि अगर मैं सबको अरेंज करूं, ठीक है, अगर मैं सबको अरेंज करूं, टेकिंग ऑल एट अ टाइम, ये नहीं भी बोलूंगा तो ऑल एट अ टाइम होगा अगर बोला नहीं गया तो। नंबर ऑफ अरेंजमेंट टेकिंग ऑल एट अ टाइम क्या होगा इसका, तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि ऑल द लेटर्स आर सेम और डिस्टिंक्ट, मतलब कुछ रिपीटेशंस है या सब डिस्टिंक्ट लेटर्स है। तो वी कैन सी दैट ऑल लेटर्स आर डिफरेंट, ऑल लेटर्स आर डिफरेंट, मतलब ऑल थिंग्स आर डिफरेंट, राइट। जब थिंग्स डिफरेंट हो तो आपका आंसर क्या होगा, फैक्टोरियल ऑफ नंबर ऑफ थिंग्स, कितनी चीज़ें हैं, 3 4 5 6 7 8, आंसर इज फैक्टोरियल, फिनिश, ठीक है। तो जब भी कोई वर्ड दे एंड दे आस्क यू हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर देयर, मीन्स हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड बाय